Recording started. Zoom out. But Well, good afternoon, dear students, 12D and 12F. As promised, I am with you again, and in today's session, we will take up formal and informal invitations. Well, you see, as you are aware, that in the writing section, amongst the short compositions, you've got notices, advertisements, posters have been deleted, and invitations. So, of these notices and advertisements, you have studied last session, and if you have any queries regarding that, you can ask. Moreover, the classes that were held in April and May, you know, the teachers covered notices, and you even wrote a notice that was a part of your assignment. So I take for granted that we have covered notices and advertisements. Now, invitation is one item which is not covered as far as our first sessional course is concerned. I have not yet gone through the revised sessional courses because our course has been revised. But at the moment, I'm following the previous year's pattern. So, though of course I am, discussing only those items which have not been deleted. So, apart from this, I believe that you've got letter writing, which include letters to the editor, applications of job, and letters to the authorities. These you have done last session. Again, that in any case is meant for the second sessional. And again, if you have any queries regarding that, we will discuss it. Otherwise, we will take it as done. Then, speech and debate have been deleted. I think essay and article also. Perhaps reporting is still there. I'll confirm, recheck. So, note making and summarizing has also been deleted. Now, invitations are left, which is a new item for you. So, I'll cover it, and then, as I've already told you in the previous video, you see, as far as the two lessons from Vistas are concerned, that is the enemy and should the wizard hit mummy. I don't know why my throat is choking. So you can study these two lessons with the help of the study material available on the web page of our school. And if you have problems, we'll discuss it. Moreover, I'll try to find time to give you a kind of a summary and discuss question answers related to that, but probably I'll do it in September. So, this is the plan then. I'll discuss invitations, and after this I'll give you a breather of about 10 days. Then I'll come back to you again. In between, if you wish, you can send in your queries. Okay, so let's start invitations. Now, invitations are of two types, formal and informal. You see, formal invitations have a specific pattern, and the informal invitations are like personal letters, ordinary letters. So first, I'll dictate you 6 examples. These are brief examples. You can write it, and then we will discuss the features of these examples, which will cover both the kinds of invitation. So first, here is an example of formal invitation. You may have seen the printed cards. The very formal invitation has that same pattern. So each of the point is mentioned in one line. So in the first line, in the
देखिए आपको हर लाइन में ये मटेरियल डिवाइड करना है। तो पहली लाइन में आपको लिखना है मिस्टर एंड मिसेस जी सुरेंद्र, मिस्टर एंड मिसेस जी सुरेंद्र। अब ये आप इस तरह लिखिए कि ये लगभग सेंटर में आए। मिस्टर एंड मिसेस जी सुरेंद्र। अब नेक्स्ट लाइन में आ जाइए, ये थोड़ी लंबी है तो इसको आप पहले से शुरू कर सकते हैं पीछे से। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ, request the pleasure of the company of, the company of। अब ये सेकंड लाइन कंप्लीट हो गई। अब थर्ड लाइन ये छोटी है, इसमें सिर्फ आपको इतना लिखना है मिस आर राधा, मिस आर राधा। अब नेक्स्ट लाइन में आ जाइए। ऑन द ओकेजन ऑफ द 16th बर्थडे, on the occasion of the 16th birthday। अब नेक्स्ट लाइन में of their daughter, अब नेक्स्ट लाइन में एस वीना। अब फिर नेक्स्ट लाइन में at 6:30 PM on April 16th, on April 16th। तो अब इस सारे मैटर को, अब अभी पहले आपको अंदाज़ा नहीं होगा, इस सारे मैटर को आपको ऐसे अरेंज करना है कि ये सब एक एक लाइन में ये इंफॉर्मेशन आए। तो अब लाइन की लेंथ को देखते हुए आपको डिसाइड करना होगा कि आपको लेफ़्ट साइड से कितना मार्जिन देना है। अब जैसे ये लाइन है ऑफ देयर डॉटर, तो ये तो बहुत ही कम वर्ड्स हैं, ये लगभग सेंटर में लिखे जा सकते हैं। हाँ, एट 6:30 PM ऑन April 16th, ये ज़रा सा लंबा है तो इसमें आपको थोड़ा पीछे से लेना पड़ेगा, लेकिन हर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन नेक्स्ट लाइन में आएगा। अब राइट साइड में आप लिख दीजिए, यानी एक्सट्रीम राइट पे 4 लेटर्स आपको लिखने और चारों कैपिटल्स में होने चाहिए। कैपिटल आर फुल स्टॉप, कैपिटल एस फुल स्टॉप, कैपिटल वी फुल स्टॉप, कैपिटल पी फुल स्टॉप। आई रिपीट, RSVP। अब लेफ्ट साइड में आप ये RSVP वाली लाइन छोड़ दें, उसके नीचे वाली लाइन में एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट कीजिए। एड्रेस है ये 27 दी ऑर्चर्ड्स, नेक्स्ट लाइन में बेंगलोर। तो ये बेंगलोर। अब ये 27 द ऑर्चर्ड्स, इसके बारे में दो पैटर्न्स हैं। एक तो ये कि RSVP वाली लाइन छोड़ देनी चाहिए और आप चाहें तो उसी लाइन में 27 द ऑर्चर्ड्स लिख सकते हैं, लेकिन लेटेस्ट में आपको लेफ्ट से ये RSVP वाली लाइन छोड़ देनी चाहिए। तो ये आपकी एक एग्जांपल हो गई फॉर्मल इनविटेशन की। अब देखते हैं कि इसमें रिप्लाई कैसे करना है, एक्सेप्ट कैसे करना है, रिफ्यूज़ कैसे करना है। पहले रिप्लाई एक्सेप्टेंस। इसमें आपको सिंपल लिखना होगा, जैसे लिखते हैं लेफ्ट साइड से, मिस आर राधा। कोई इसमें एड्रेस नहीं है, याद रखिए, कोई वो नहीं है, यानी सैल्यूटेशन नहीं है। हम यूँ ही स्टार्ट कर रहे हैं लेफ्ट से। मिस आर राधा, थैंक्स
Mr. and Mrs. G. Surendra, for their kind invitation, comma, which she is very happy to accept. ये रिप्लाई कंप्लीट हो गई है आपकी, इसमें कोई एड्रेस वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। अब जब ये एनवेलप में आप रखेंगे और इसको पोस्ट करेंगे तो बाहर आप जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिख दीजिए, अंदर कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब रिप्लाई रिफ्यूज़ल, देखिए रिफ्यूज़ करना चाहिए पोलाइट तरीके से। कैसे? मिस आर राधा, लेफ्ट से शुरू करिए। मिस आर राधा, थैंक्स मिस्टर एंड मिसेस जी सुरेंद्र for their kind invitation, comma, but regrets that owing to a previous engagement, comma, she is unable to accept. She is unable to accept. फुल स्टॉप। अब ये आपकी 3 एग्जांपल्स हो गई फॉर्मल इनविटेशंस की, इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आप 3 एग्जांपल्स इसी तरह से इनफॉर्मल इनविटेशंस की भी लिख लें। ये जैसे मैंने आपको बताया था, दीज आर लाइक ऑर्डिनरी पर्सनल लेटर्स। तो इसमें पहले आप ऊपर लेफ्ट की तरफ डेट लिख सकते हैं, लेकिन इनफॉर्मल लेटर्स में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है मामला, लेफ्ट के बजाय राइट की तरफ भी लिख सकते हैं। पहले तो राइट की तरफ ही लिखते थे, लेकिन अब लेफ्ट का ट्रेंड ज़्यादा है, तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप लेफ्ट की तरफ लिखें। फर्स्ट लाइन में 27 द ऑर्चर्ड्स, सेकेंड लाइन में बेंगलोर, और फिर लेटेस्ट पैटर्न के मुताबिक आप एक लाइन का स्पेस देके डेट भी लिखेंगे, अप्रैल 18th। अब नीचे आ जाइए, लेफ्ट पे जैसे सैल्यूटेशन लिखते हैं, डियर मिस राधा, कॉमा कर लीजिए। अब बॉडी ऑफ द लेटर शुरू करिए, नीचे से लेफ्ट साइड से 1-2 स्पेसेस देके, आई हैव मच प्लेजर in inviting you to the 16th birthday party which we are giving for our daughter comma Veena comma at 6:30 p.m. on April 16th. Full stop. We very much hope that you will be able to come. Full stop. अब लेफ्ट साइड पे yours
ध्यान रखिएगा YOURS, वाई कैपिटल होगा और एस के बाद कोई कॉमा नहीं होगा, ना तो अपॉस्ट्रोफी ना सिंपल वाला। ये अक्सर मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, जिसपे उनका आधा नंबर कट जाता है। तो YOURS, योर्स, फिर स्पेस देके सिंसियरली। इस पे आप चाहें तो कॉमा लगा सकते हैं, लेकिन आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो कॉमा ना लगाने का है। अब इसके नीचे एक लाइन छोड़ दीजिए जहां पे आपको सिग्नेचर करने होंगे, या सिग्नेचर लिख दीजिए। फिर नेक्स्ट लाइन में जी सुरेंद्र। अच्छा, इस रिप्लाई के बारे में एक बात आपको यही बताता चलो, हो सकता है मेरे जहन से निकल जाए, कि इन्होंने ये नहीं बताया कि पार्टी कहाँ होनी है। आप चाहें तो ये भी इंक्लूड कर सकते हैं। वीना के बाद एट, आप इस तरह से लिख सकते हैं, विच वी आर गिविंग फॉर आवर डॉटर वीना एट आवर हाउस एट 6:30 PM ऑन April 16। बस ये ध्यान रखिएगा कि प्लेस पहले आएगी, टाइम बाद में आएगा। और अगर मान लें हम कि कहीं और दे रहे हैं, मिसाल के तौर पे किसी क्लब में या किसी कहीं किसी हॉल में, तो फिर वो मेंशन कर सकते हैं। लेकिन बर्थडे पार्टी यूजुअली घर पे ही होती है। खैर, एनीवे, तो ये हो गया एक इनफॉर्मल इनविटेशन की एक एग्जांपल हो गई। अब उसी तरह से इसको एक्सेप्ट कैसे करना है और रिफ्यूज कैसे करना है। तो पहले तो लेफ्ट साइड पे एड्रेस लिखिए, 16 मिल रोड, 16 मिल रोड, बेंगलोर। बेंगलोर जाहिर है नेक्स्ट लाइन में आएगा। फिर एक लाइन का स्पेस देके डेट डालिए, 11 अप्रैल, 11 अप्रैल। अब थोड़ा सा एक दो लाइनें छोड़ के, डियर मिस्टर सुरेंद्र। तो डियर में डी कैपिटल, मिस्टर में आर कैपिटल, सुरेंद्र में एस कैपिटल। डियर मिस्टर सुरेंद्र, इस पे कॉमा कर दीजिए। अब नीचे लेफ्ट से एक दो स्पेसेस देके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इनविटेशन, फुल स्टॉप। I will be very happy to come to the party, full stop। अब लेफ्ट साइड पे yours sincerely, फिर नेक्स्ट लाइन में सिग्नेचर, फिर नेक्स्ट लाइन में राधा। अब थर्ड रिप्लाई लिखिए, सॉरी सेकंड रिप्लाई। एड्रेस इसमें सेम रहेगा, 16 मिल रोड, बेंगलोर। एक लाइन छोड़ के लेफ्ट साइड में ही डेट 11 अप्रैल, मतलब डेट आपको DATE लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे 11 अप्रैल लिख दीजिए। अब सैल्यूटेशन पे आ जाइए लेफ्ट साइड पे, डियर मिस्टर सुरेंद्र। अब लेफ्ट साइड से आप इनका लेटर शुरू करिए, थैंक यू फॉर योर काइंड इनविटेशन, फुल स्टॉप। I am very sorry, however, sorry, I am very sorry to say, I am very sorry to say, comma, however, comma, that I will not be able to come to the party because
I already have an engagement for that evening. Full stop. अब ये सब्सक्रिप्शन, yours sincerely, नेक्स्ट लाइन में सिग्नेचर, नेक्स्ट लाइन में राधा। तो अब ये आपकी 6 एग्जांपल्स हो गई। अब हम इनको एनालाइज करते हैं और सीखते हैं कि इनके क्या क्या फीचर्स हैं। नंबर 1, नाउ यू सी that in case of a very formal invitation, these are the characteristics. First of all, it is written in third person. इसको हमेशा third person में लिखते हैं, यानी Mr. and Mrs. G. Surendra refer to themselves as Mr. and Mrs. G. Surendra and not as we. वो लेटर में हमने लिखा था ना, Mr. and Mrs. G. Surendra request the pleasure of, तो इसमें इसी तरह से कहना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि वी रिक्वेस्ट द प्लेजर, ये गलत हो जाएगा। सेकेंडली, देयर इज नो सिग्नेचर, यानी ये योर्स फेथ सब्सक्रिप्शन नहीं है, योर्स फेथफुली वगैरह वगैरह। इसी तरह से सैल्यूटेशन भी नहीं है, डियर मिस्टर राधा, मिस राधा, इस तरह से की कोई बात नहीं है। फिर द एड्रेस इज रिटन एट द bottom and the date of writing is not given. तो एड्रेस हमने लेफ्ट की तरफ नीचे लिख दिया है। आप चाहें तो उसके नीचे लेफ्ट में डेट भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि भाई जब पार्टी मिसाल के तौर पे 16 अप्रैल को है तो उससे पहले ही इनविटेशन दिया जाएगा, तो कुछ लोग डेट भी इंक्लूड कर लेते हैं, वो एड्रेस के नीचे एक लाइन छोड़ के लेफ्ट साइड पे। फिर एक फीचर इसका ये है कि दिस सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ द कंपनी ऑफ मिस राधा ऑन द ओकेजन ऑफ वगैरह वगैरह। तो प्रेजेंट टेंस ही यूज करते हैं हम, ऐसे नहीं कह सकते विल रिक्वेस्ट द प्लेजर या आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट या इस तरह करके नहीं, बल्कि रिक्वेस्ट हम करेंगे। हाँ, वॉइस की जहाँ तक बात है तो प्रेजेंट सिंपल की हम वॉइस चेंज कर सकते हैं, जैसे मिस आर राधा इज रिक्वेस्टेड, इस तरह कर सकते हैं, लेकिन एक्टिव वॉइस का यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है। फिर एंड में हमने राइट साइड में एक एब्रीविएशन इस्तेमाल किया है, RSVP एट द बॉटम। इनफैक्ट दीज आर इनिशियल्स ऑफ 4 फ्रेंच लेटर्स मीनिंग प्लीज रिप्लाई। ठीक है। और अब तो खैर शादियों वगैरह के जो कार्ड्स होते हैं या दूसरे ओकेजन्स पे, तो उसमें RSVP लिखना भी कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है। हाँ, गवर्नमेंट कम्युनिकेशंस जो होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे प्रेसिडेंट कोई मिसाल के तौर पे डिनर दे रहा है और वो प्राइम मिनिस्टर और दूसरी हाई कमिश्नर्स डिफरेंट कंट्रीज़ के उनको इनवाइट कर रहा है, तो उसमें हो सकता है कि वो RSVP लिख दिया जाए, वो बिल्कुल ऑफिशियल वेरी फॉर्मल होता है। खैर, अब गौर करिए दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन अ सेपरेट लाइन। हमें जब डिवाइड करना है, ये कैसे डिवाइड करेंगे हम कि कौन सी चीज़ किस लाइन में आनी चाहिए। सबसे पहली लाइन में हमें मेंशन करना है द नेम और द नेम्स ऑफ द पर्सन गिविंग द इनविटेशन। ठीक है, यहाँ पे हमारे नाम है मिस्टर एंड मिसेस जी सुरेंद्र। फिर हमें लिखना है द स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ द कंपनी ऑफ।
आमतौर पे इसी तरह की लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं। फिर थर्ड लाइन में हमें रीज़न बताना है, रीज़न फॉर द इनविटेशन। वो क्या है? ऑन द ओकेजन ऑफ द 16th बर्थडे पार्टी ऑफ देयर डॉटर एस, यानी एस वीना। इसको हमने डिवाइड कर दिया है, ऑफ देयर डॉटर, यानी जस्ट मिनट, वो एग्जांपल कहाँ गई हमारी? 16th बर्थडे पार्टी, 16th बर्थडे ऑन, सॉरी पार्टी नहीं है इसमें, 16th बर्थडे ऑफ आवर डॉटर। ये हमारा रीज़न हो गया, लेकिन डॉटर का नेम हमने नेक्स्ट लाइन में आके लिखा है। ये बात गौर करने की है। उसके बाद हमने बताया है टाइम, at 6:30 PM on 16th April। इसमें हमारा टाइम जो है वो at 6 PM on 16th April। देखिए आप यहाँ भी प्लेस मेंशन कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम से पहले आनी चाहिए। at फॉर एग्जांपल ABC मैंशन, यहाँ पे आवर रेजिडेंस ना कह के अपनी रेजिडेंस का नाम बता देंगे। या at ABC हॉल at 6:30 PM, लेकिन फिर उसको हॉल जो है वो एस वीना के बाद आपको एक नई लाइन में लिखना पड़ेगा, at ABC हॉल, फिर नेक्स्ट लाइन में at 6:30 PM ऑन April 16। इस तरह से। यानी मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दूं कि हमने रीज़न बताया, ऑन द ओकेजन ऑफ द 16th बर्थडे पार्टी ऑफ देयर डॉटर, ये एक लाइन में आ गया। फिर डॉटर का नाम क्या है? एस वीना, फिर ये दूसरी लाइन में आ गया। अगर आपको प्लेस लिखना है तो फिर वो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, और फिर नेक्स्ट लाइन में टाइम तो बताना ही बताना है। तो इसमें इन्होंने प्लेस नहीं लिखी है, आप चाहें तो प्लेस लिख सकते हैं। सो वी कम टू द कंक्लूजन देन कि हमें इस तरह से डिवाइड करनी है इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट लाइन्स। अब याद रखिए, इट इज़ नॉट एसेंशियल टू डू सो, ये ज़रूरी नहीं है, बट इट इज़ यूजुअल, इट इज़ कॉमन, एंड इट इज़ ऑलवेज डन इन प्रिंटेड इन्विटेशंस। जो प्रिंटेड इन्विटेशंस होते हैं, आपने देखा होगा मैरिजेस वगैरह के, उनमें हमेशा जो है वो इन्फॉर्मेशन इसी तरह से अरेंज की जाती है। अच्छा, तो फॉर्मल इन्विटेशन हमें वेरी फॉर्मल कहना चाहिए, इसे वेरी फॉर्मल इन्विटेशन इस तरह से लिखना है। अब हम एनालाइज करते हैं रिप्लाईज को। द रिप्लाई टू द वेरी फॉर्मल इन्विटेशन, इसमें आप नोट करें दैट द थर्ड पर्सन इज यूज्ड एंड देयर इज नो सिग्नेचर। कैसे? मिस आर राधा थैंक्स मिस्टर एंड मिसेस जी सुरेंद्र। आप देखेंगे कि कोई ना तो सैल्यूटेशन है, ना कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है, यानी डियर मिस्टर और योर सिंसियरली वगैरह कुछ नहीं हो, जैसे कि इनविटेशन में था। फिर सेकंड पॉइंट है, देयर इज नो एड्रेस और डेट, ठीक है ना? हाउएवर पीपल ऑफन डू इंक्लूड द डेट ऑफ देयर रिप्लाई, यूजुअली एट द टॉप लेफ्ट और बॉटम लेफ्ट। आप टॉप लेफ्ट या बॉटम लेफ्ट पे रिप्लाई की डेट लिख सकते हैं। ओके, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी थैंक्स मिस्टर एंड मिसेस जी सुरेंद्र, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और ये याद रखिए, द फॉलोइंग वोकेबलरी आइटम्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज्ड, जैसे समवन थैंक्स somebody, he or she is very happy or pleased to accept, या he or she regrets that a previous engagement। मतलब कि जब रिफ्यूज़ करते हैं तो पोलाइटली करते हैं, ऐसे नहीं कि भाई नहीं आई विल नॉट बी एबल टू कम, ऐसे नहीं, बल्कि हम पोलाइटली बताते हैं कि आई विल नॉट बी एबल टू कम बिकॉज। अब उतनी तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है कि मिसाल के तौर पे आई हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ माई नेफ्यू एक्सेट्रा, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव
and I already have an engagement for that evening. तो इसकी लैंग्वेज भी तकरीबन फिक्स्ड होती है. अच्छा, अब नाउ रिमेंबर that people feel that very informal invitation जो है, it should only be used for official communications, official occasions. जैसे अब डिग्नेटरीज को इनवाइट करना है 15th अगस्त को या 26th ऑफ जनवरी को, तो they therefore prefer to use the form of an ordinary letter for personal invitations, जैसा कि हमने इनफॉर्मल इनविटेशंस में देखा है. अच्छा, अब तो ये बात हुई फॉर्मल इनविटेशंस की. लेट्स चेक द टाइम. I think the time's up. In the next video, I will discuss with you. Yes, in the next video, I'll discuss the informal invitations and some exercises. I'll give you some exercises. Okay, so we stop here. Thank you very much. Stop button.